Hello, dear students. What's going on? Hope everything will be fine. This is virtual video session of MRM Public School, Mathurapur, Mai Road, Jaunpur, for class 7th, and the subject is science. Chapter 1, Nutrition in Plants. Our today topic is nutrients and mode of nutrition. So, by the way, myself MD Asif. Let's start. Our first topic is nutrients and nutrition. फर्स्ट एवरी स्टूडेंट शुड लर्न द स्पेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की स्पेलिंग लर्न करनी होगी। सो यहाँ पर स्पेलिंग क्लियरली दी गई है, आप लर्न कर लीजिए। मैं इसकी मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व एंड न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ओके, सो लेट्स discuss about nutrients. What are nutrients? Nutrients, carbohydrate, proteins, fat, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. Okay, student? Carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are components of food. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल ये फूड के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, भाग होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उनमें ये मेन उसका कंपोनेंट है फूड का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लर्न। ओके, so let's see what's our next topic. Our next topic is nutrition. Nutrition. Nutrition in Hindi posad. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition is the mode of taking food by an organism. किसी जीवधारी द्वारा भोजन लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और साथ ही साथ इतना ही नहीं है, इसका ये यूटिलाइजेशन जब बॉडी कर लेती है तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट मींस दैट न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? फूड लेने का एक मोड होता है, फूड टेकिंग का एक मोड होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ऑर्गेनिज्म इस फूड को ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूटिलाइज जब कर लेती। कहने का मतलब बाहर से भोजन लिया और उसका यूज कर लिया और बॉडी को बेनिफिशियल हो गया, बॉडी का ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया और उसकी फिजियोलॉजी मेंटेन हो गई, तो इसी चीज को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है और लर्न करनी है। So every student write down and learn. Our next topic is topic 1.1, mode of nutrition in plants. Mode of nutrition in plants. हमारा अगला टॉपिक है mode of nutrition in plants. So let's see what is this. First topic is autotrophic nutrition. In Hindi Swaposad. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic, where we can divide the word autotrophic into two. Auto where means self and tropos which means nourishment. So every student should remember the definition of autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition in Hindi is opposite, as I told you, the mode of nutrition in which organism make food themselves. ऐसा पोषण जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता हो फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सरल पदार्थों से, सिंपल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं अगर ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। We can divide the word autotrophic into two. Auto means self and tropos means nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. On this basis of autotrophic nutrition, plants and I can told you one another example like bacteria and blue green algae are also autotrophs. So the all plants includes in autotrophs. That's why, because of autotrophic nutrition. Okay, every student. So write down the definition of autotrophic nutrition and learn. So let's see what's our next topic.
Our next topic is heterotrophic nutrition, in Hindi विषम पोषण. Animals and most other organisms take food prepared by plants. जानवर और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जीवधारी जो अपना भोजन लेते हैं प्लांट्स के प्रिपेयर फूड से, यानी कि उनका भोजन प्लांट का प्रिपेयर करता है. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. ऑन दिस बेसिस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. All living organisms require food. सभी जीवधारी को भोजन की जरूरत पड़ती है. Plants can synthesize food for themselves. जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ये अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं for themselves, स्वयं से ही. बट एनिमल्स, लेकिन जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे कि हम ह्यूमंस यानी मानव भी आ जाते हैं, बाकी बाकी बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गया, और कैट, डॉग, एवरी एनिमल दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि वे अपना भोजन प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं. जैसे हम ही अगर कंसिडर कर ले अपने फूड को, तो हम जो पल्सेस, राइस, व्हीट लेते हैं, ये प्लांट से ही, प्लांट ओरिजिन का ही होता है. और मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, ये एनिमल ओरिजिन का होता है. तो हम हेटेरोट्रॉप्स से, इट मींस दैट हम अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और अदर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मानव होता है और दूसरे जानवर जो होते हैं, सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर. सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन ऑल द डेफिनेशंस of nutrition, nutrients, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and learn. So write down and learn. थैंक यू वेरी मच. बट जाते जाते स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताते जाऊं कि आप लर्निंग पर फोकस करिए, और जो जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही है वर्चुअल क्लास में, सब कुछ राइट करिए और लर्न करिए, और उसको सेंड करिए टेलीग्राम पर इनिशियल के लिए. ओके, सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न. थैंक यू वेरी मच.